Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about endocrine system. As in previous lecture we were discussed that there are three types of glands: endocrine glands, exocrine gland and heterocrine glands. How these glands work, how they perform their function, how they behave, in which manners they work, these all are included in its system. So today we are going to discuss about endocrine system. Endocrine system consists of different glands and group of capillaries which facilitate diffusion of hormones, and this hormones are released into bloodstream. Look at here in this picture, this is the secretory vesicle, and in it there are different hormones are present which are moving toward the cell membrane, and they released out when cell membrane is ruptured. They released out from here and entered into bloodstream. When they enter into bloodstream, they move and reach to their target cell. When they reach to their target cell, they do their function and deliver their message. Okay, they are commonly referred as the ductless gland. ये जो है वो ductless gland होते हैं endocrine, ठीक है, because the hormone जो है वो directly जो है वो blood stream में इंटर होता है, डायरेक्ट वहाँ पर ट्रांसफ़र होता है. अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट ग्लैंड्स आ जाते हैं. द फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, adrenal gland, pancreases and thymus gland. Okay, first of all we are going to discuss about pituitary gland. Pituitary gland is present in means इसकी लोकेशन क्या आ जाती है? It is present in the brain under the hypothalamus. It attached to the hypothalamus through infundibulum. जो बिल्कुल टॉप पे वहाँ पे ब्रेन होता है, उसके बिलो साइड पे जो है वो हाइपोथैलेमस होता है. हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ अटैच होता है थ्रू इन्फंडिबुलम. इन्फंडिबुलम जो है वो कनेक्शन है इन दोनों के दरमियान में, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान में. ओके, द कलर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रेडिश ग्रे एंड इट्स साइज एंड शेप बोथ आर सिमिलर टू पी. अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का आपस में क्या कनेक्शन आ जाता है, इनका क्या रिलेशन है? द कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड रिजल्ट फ्रॉम द हार्मोन रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन. हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो है वो हार्मोन रिलीज करता है जो इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन बनाता है. अब हाइपोथैलेमस जो है वो टू डिफरेंट कनेक्शन जो है वो दे देता है. अब जो मेन पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू three parts, ठीक है. द फर्स्ट वन इज एंटीरियर लोब, सेकंड वन इज इंटरमीडिएट लोब एंड द थर्ड वन इज पोस्टीरियर लोब. एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है और पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है. अब एंटीरियर लोब जो है ये डायरेक्ट जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जो है वो उसके साथ जो है वो इसका कनेक्शन बनता है, और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है इट इज़ डायरेक्टली थ्रू न्यूरॉन. ये जो है इसका न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो कनेक्शन होता है. ओके, नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स लोकेशन. अब इसकी लोकेशन इसमें शो हो रही है. द अबव आप साइड पे देखें, यहाँ पे ब्रेन आ जाता है. देन नेक्स्ट वन इज दिस वन इज हाइपोथैलेमस एंड बिलो इज पिट्यूटरी ग्लैंड. और पिट्यूटरी ग्लैंड देखें, पी साइज भी इसका पी जितना है और शेप भी. Now look at here, it is the upper one is hypothalamus, then this one is infundibulum. This one is infundibulum through which it is attached to pituitary gland, and pituitary gland is divided into three parts. The first one is anterior pituitary, this one is anterior pituitary, then at the center position it is not labeled but it is intermediate lobe, and the third one is posterior pituitary, and outside of its sphenoid bone is present. Okay, now this is the anterior pituitary gland. It is p size and anterior pituitary gland is front lobe. ये बिल्कुल front lobe आ जाता है और इसको जो है वो pituitary gland का floor भी बोला जाता है, क्योंकि सॉरी pituitary gland का नहीं, इसको brain का floor बोला जाता है because it is present at the bottom. और इसको जो है वो सिला टर्सिका भी बोला जाता है. सिला और टर्सिका के दरमियान में जो वो स्पेस है, ठीक है. एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? द फर्स्ट वन इज TSH which is thyroid stimulating hormone. Next one is ACTH which is adrenocorticotropic hormone, and then is LH which is luteinizing hormone. FSH is follicle stimulating hormone. GH is growth hormone, and next is prolactin.
we are discussing them one by one. Okay, the first one is growth hormone. growth hormone क्या करता है, ये जो है वो हमारी बॉडी को ग्रोथ देता है, हमारी बॉडी को डेवलप करता है, सेल की जो है वो ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और अब इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ क्या आ जाती हैं, समटाइम जो है वो इसकी जो है ये रिलीज़ किस तरह से होता है, सिक्रीशन की बेस पे जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जिस तरह से अब ग्रोथ हार्मोन है, जब ये इसकी डेफिशिएंसी होती है, जब ये कम रिलीज़ हो रहा होता है, जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर है उससे इसकी अमाउंट कम होती है, तो ये क्या करता है, ड्वार्फिज्म काज करता है। ड्वार्फिज्म में क्या होता है कि हमारे हैंड और फीट जो उनका साइज़ बहुत कम रह जाता है, बाकी भी जितने भी ऑर्गन हैं सबका साइज़ बहुत कम होता है, ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो रही होती है, डेवलपमेंट बहुत स्लो हो रही होती है, और बिल्कुल शेप भी, स्ट्रक्चर भी जो है ना वो बिल्कुल शॉर्ट से रह जाता है। और इसके अलावा ये कि एक्सक्यूज़ मी, ओके, दिस इज़ ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में क्या होता है, डेवलपमेंट बहुत कम होती है, स्लो हो रही होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है वो स्लो होती है, हैंड और फीट जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा सा रह जाता है। आल्दो इट नॉट अफेक्ट द IQ लेवल और ब्रेन डेवलपमेंट, ये जो है वो इंटेलिजेंसी को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते। लाइक हेयर इट इज़, अब यहाँ पे देखें कि इनकी जो है वो एज देखें और हाइट देखें, हाइट हैंड फीट बहुत छोटे छोटे रह गए हैं, लेकिन एज जो है वो ज़्यादा है, तो ही सफर्ड इन ड्वार्फिज्म। अब यहाँ पे क्या है, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जब ओवर सिक्रीशन होती है तो जिजेंटिज्म जो है वो काज हो जाता है, ठीक है। जिजेंटिज्म में क्या होता है, जेंट साइज़ मतलब बहुत बड़ा बड़ा जो है वो साइज़ होता है, और इट काज एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली में क्या होता है कि हैंड और फीट बहुत ज़्यादा बहुत जो है वो बड़े हो जाते हैं, नोज़ का साइज़ भी बड़ा हो जाता है, और नर्व्स में नर्व मसल जो होते हैं उनमें पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, स्किन बहुत ऑयली और थिन हो जाती है, और बोन्स जो है वो थिकनेस में ज़्यादा ग्रो कर रही होती है, लेंथ में वो ग्रो नहीं कर रही होती। नाउ हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ जिजेंटिज्म। अब ये जो टू लेडीज़ हैं इनका नॉर्मल साइज़ है देखें, बट उसके कंपैरिजन में देखें तो वो ये जो है दे बोथ ऑफ दीज आर नियर टू अर्थ, तो वो उसके मुकाबले में वो चेंज लग रही हैं, लेकिन उनका साइज़ नॉर्मल है। तो अब ये जो है वो जिजेंटिज्म की एग्जांपल है, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज है ना। उसके हैंड्स देखें आप, हैंड्स देखें, उसकी हाइट देखें, वो सारा कुछ जो है वो, तो इसमें जो है वो ओवर सिक्रीशन हुई है किसकी, ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल टाइम टू टाइम आती रहती हैं। गायनी बुक रिकॉर्ड में भी जो है वो इस तरह के लोग आते रहते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। 1882 में एक को जो है वो किया गया था, देखा गया, तो उनकी हाइट वगैरह मेजर की गई थी, तो वो आई थिंक 8.2 फीट जो है वो उनकी हाइट बन रही थी। तो ये जो है वो जिजेंटिज्म में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज TSH, इट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट रिलीज्ड बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो इसको रिलीज़ करता है, और TSH रेगुलेट करता है नेगेटिव फीडबैक ऑफ थायरॉक्सिन। अब ये नेगेटिव फीडबैक को जो है वो थायरॉक्सिन के स्टिमुलेट कर होता है, रेगुलेट कर होता है। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक में इस तरह से होता है कि जैसे थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है ना, ओवर सिक्रीशन हो रही है, उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो रिलीज़ हो रहा है, तो कुछ नर्व्स जो होती हैं वो उस ग्लैंड को जाके मैसेज दे देती हैं कि अब जो है वो सिक्रीशन कम करनी है, ठीक है। सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, ओवर सिक्रीशन हो रही है, इसको स्टॉप करना है, ये कम करना है, तो यहाँ पे जो है वो सिक्रीशन जो है वो फिर कम होना शुरू हो जाती है, ये स्टॉप हो जाती है, इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। Next one is ACTH, it is adrenocorticotropic hormone, it act on adrenal cortex and secrete glucocorticoids and androgens। अब glucocorticoids क्या करता है कि ये फाइट करता है अगेंस्ट एंटीजेंस। एंटीजेंस वो होते हैं जो बाहर से अटैक करते हैं हमारी बॉडी पे, और हमारी बॉडी में फिर एंटीबॉडीज़ होते हैं जो उनके अगेंस्ट जो है वो फाइट करते हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी मैकेनिज्म होता है, ये इनकी जो है वो आपस में, वो जिस तरह से आर्म फोर्सेस होती हैं, एक तरफ से जो है वो इंडिया अटैक कर रहा है, दूसरी साइड से पाकिस्तान की जो है वो फोर्स उसके अगेंस्ट फाइट कर रही है, दरमियान में बॉर्डर आ जाता है, इस तरह से जो है ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो इम्यून सिस्टम को हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर आल्सो रिलीज स्ट्रेस एंजाइटी टेंशन, इस चीज़ को भी जो है ये रिलीज़ आउट करते हैं। एंड्रोजन डेवलप मेल ट्रेट्स में आ जाते हैं, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं मेल्स के, वो इसमें डेवलप होते हैं। एज इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज टोल्ड यू डेट कि मसल्स डेवलपमेंट होती है मेल में, ठीक है। इसके अलावा फेस पे जो है वो हेयर अपीयर होते हैं, बाकी भी बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो डिफ़र करते हैं, उसमें जो है वो प्यूबर्टी में जो है वो अपीयर होना स्टार्ट होते हैं, तो वो एंड्रोजन की वजह से होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो भी इसमें जो है वो हेल्पफुल होता है। दे बोथ ऑफ दीज आर मेल सेक्स हार्मोन।
Okay, next one is FSH. It is follicle stimulating hormone. In female it develop ovarian follicle. ये ओवरी को जो है वो डेवलप करता है और मेल में ये स्पर्म की प्रोडक्शन करता है. इसके अलावा जर्मिनल एपिथेलियम की जो है वो प्रोडक्शन कर रहा होता है. ठीक है, टेस्टिस के ऊपर जो है वो जो एपिथेलियल लेयर होती है ना उसकी जो है वो डेवलपमेंट करता है. LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल. ये ट्रिगर करता है ओवुलेशन को, मीन्स को उसको उभारता है ओवुलेशन के लिए कि अब ओवुलेशन जो है वो हो जानी चाहिए. ओवरी जो की प्रोडक्शन करता है. ल्यूटिनाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ रप्चर्ड फॉलिकल जो है उसको ग्लैंडुलर प्रॉपर स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट कर देता है. इसको कॉर्पस ल्यूटियम भी बोला जाता है. और मेल में ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को. ठीक है, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इनका क्या फंक्शन होता है, ये प्रमोट करते हैं टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को. और इसके अलावा जो है और भी जो मेल्स के जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, मेल्स के जो हार्मोन होते हैं उनको फर्दर स्टिमुलेट करता है कि वो रिलीज़ हों. नेक्स्ट वन इज़ प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये मेमोरी ग्लैंड जो है उनकी इनलार्जमेंट करने में हेल्पफुल होता है और मिल्क की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. और इसके अलावा जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको भी इनहिबिट करता है इन लैक्टेटिंग वुमेन. जो मदर जो है वो क्या कर रही होती हैं, फीड करवा रही होती हैं. नेक्स्ट वन इज़ इंटरमीडिएट लोब. इंटरमीडिएट लोब जो है वो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर के सेंटर में प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस मेलानोसाइट्स प्रोड्यूसिंग हार्मोन. ये मेलानोसाइट प्रोड्यूसिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है. इसमें जो है वो पिगमेंट की जो है वो पिगमेंट रिलीज़ करता है जिसको मेलानिन बोलते हैं. मेलानिन पिगमेंट जो है वो स्किन के कलर के लिए जो है वो यूज़ होता है. अगर मेलानिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो स्किन का कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, ब्राउनिश ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा. अगर मेलानिन कम है तो जो स्किन का कलर है वो वाइट होगा. ठीक है, अब जिस तरह से ये जो होते हैं, जो लोग मीन ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो वो वहाँ के लोग जो है वो ज़्यादा उनका कलर जो है वो फेयर होता है. ठीक है, बहुत वाइट होते हैं तो उनके अंदर जो वो मेलानिन की जो अमाउंट है उनकी स्किन में वो कम होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए उनका कलर इस तरह से होता है. इसके अलावा अफ्रीका के लोगों को देख लें, श्रीलंका वालों को देख लें तो उनका कलर जो है वो डार्क होता है. तो वो जो डार्क होता है उनका कलर वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है. उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है. ये एनवायरनमेंट की वजह से भी होता है. ठीक है, इसके अलावा मेलानिन पिगमेंट जो है ये प्रेगनेंसी में जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है. तो फिर जो वो औरतें होती हैं उनकी उस टाइम में जो है वो कलर जो है वो ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है या कुछ स्पॉट्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं. जिस जगह पे मेलानिन एबंडेंट होता है, एबंडेंट अमाउंट में होता है, वो उस जगह पे क्या होता है कि वो कुछ स्पॉट्स जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं. इसके अलावा कुछ ये क्रीम्स वगैरह भी होती हैं, इसमें भी जो है वो मेलानिन को जो है वो कम करने के लिए, ये जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं उनमें मेलानिन को कम करने के लिए जो है वो कुछ उसकी इनहिबिशन जो है वो डाली जाती है ताकि मेलानिन की अमाउंट स्किन में कम हो जाए. तो वो मेलानिन कम होगा तो वो स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली फेयर हो जाएगी. लेकिन इसके जो है वो काफ़ी फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ पोस्टीरियर लोब. पोस्टीरियर लोब में क्या आ जाता है, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन आ जाता है. ठीक है, अब एंटीड्यूरेटिक हार्मोन क्या करता है, इसमें ड्यूरेसिस मीन होता है यूरिन की प्रोडक्शन और एंटीड्यूरेटिक का मतलब आ जाता है यूरिन प्रोडक्शन की इनहिबिशन, मतलब यूरिन प्रोडक्शन को कम करना है. ठीक है, तो एंटीड्यूरेटिक हार्मोन क्या करता है, इट रिलीजेस व्हेन साल्ट हाई एंड वाटर लेस. जब साल्ट ज़्यादा होता है, साल्ट क्या है, स्लूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है. जब साल्ट स्लूट मिलते हैं तो वो सोल्यूशन बनाते हैं. अब यहाँ पे क्या हो गया कि स्लूट ज़्यादा हो रहा है और सॉल्वेंट जो है वो कम हो रहा है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा. इट एक्ट ऑन किडनी एंड इनहांस द वाटर रीअब्जॉर्प्शन. ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करेगा. वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करें तो वाटर जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे आप, यूरिन प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होगी, तो वो फिर नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाएंगे. नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन जो है वो भी पोस्टीरियर लोब का जो है वो हार्मोन है. ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था. ये जो है वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. ठीक है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है तो जो डिलीवरी है वो इजीली हो जाती है और इससे जो है वो लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब रिलीज़ होता है. तो इसके अलावा ये लैक्टेशन में भी हेल्प करता है. लैक्टेशन का मतलब है मिल्क प्रोडक्शन. ठीक है, और लेट डाउन रिफ्लेक्स का मतलब है कि मिल्क इज़ रेडी टू फ्लो. तो ये सारा उसमें जो है वो आ जाता है. ठीक है,
अब नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या इंपॉर्टेंस है? इट कंट्रोल द केमिकल एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी। बॉडी में जो है वो केमिकल और वाटर जो है उसको बैलेंस रखने में हेल्पफुल होगा। किसी चीज़ की अमाउंट ज़्यादा या कम नहीं होगा, उसके थ्रू फिर डिफरेंट वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आते हैं। ये इस तरह की चीज़ें ला के ये उन चीज़ों को बैलेंस रखता है। ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को भी जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन से निकला है, जिसके थ्रू जो है ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस होते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है स्मॉलर में, और एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये आ जाता है मेटाबॉलिज्म। इन्फ्लुएंस करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, इसके अलावा स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ गोनेड्स। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? एज इट टेक्स मैसेज फ्रॉम द ब्रेन via gland hypothalamus and uses these message to produce hormone that affect many parts of the body। ये मैसेज को रिसीव करके और फिर डिफरेंट पार्ट्स में जो वो कहाँ पे हार्मोन को रिलीज होना है वो चीज़ अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग स्टिमुलेटिंग ऑल द अदर हार्मोन प्रोड्यूस ग्लैंड। अच्छा, ये बाकी जो हार्मोन्स हैं उनको भी जो है वो क्या करता है? रिलीज़ करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, बाकी हार्मोन्स को भी स्टिमुलेट करता है। इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये दूसरे हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने में, रेगुलेट करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट वन इज़ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो आपकी नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, द थायराइड ग्लैंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। ये जो है इसकी कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, इसकी 2 लोब्स होती हैं, एक राइट थायराइड ग्लैंड है और दूसरा लेफ्ट थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ये बटरफ्लाई शेप का होता है। इट कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट। वही मेटाबॉलिज्म से जो वो मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बॉडी में होते हैं उनको कंट्रोल करता है। प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। और इस प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन है जो अमाइनो एसिड्स के थ्रू होती है। अमाइनो एसिड राइबोसोम्स के साथ जो है वो अटैच होते हैं और फिर वहाँ पे जो है वो आके ट्रांसफर आरएनए वगैरह और वो सारे अटैच होते हैं। तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये 3 स्टेप्स में होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड टर्मिनेशन। ये प्रोटीन सिंथेसिस आ गया। एंड कंट्रोल द बॉडी सेंसिटिविटी टू अदर हार्मोन। और बॉडी जो है वो दूसरे हार्मोन के लिए कितनी सेंसिटिव है उन चीज़ों को भी ये कंट्रोल करता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट वन इज़ लोकेशन। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे आ जाती है? ये नेक रीजन में होता है, इन फ्रंट ऑफ द लैरिंक्स एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया और जो ये हैं लैरिंक्स हैं वहाँ पे जो है ये प्रेजेंट होता है, उनके साथ प्रेजेंट होता है। ये देखें, ये ऊपर लैरिंक्स आ गया और फिर ट्रेकिया और उनकी बिल्कुल बिलो साइड पे साथ ही अटैच हुए हुए थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। ग्लैंड इज मेड अप ऑफ 2 लोब्स ऑफ थिक रेड ग्लैंडुलर टिश्यू जॉइंट टुगेदर बाय नैरो स्ट्रिप ब्रिज कॉल्ड इस्थमस। अब ये जो है वो इस्थमस के थ्रू जो है वो अटैच हुआ होता है। ये देखें, ये जो ब्लू कलर ये जो इसके दरमियान में जो कनेक्शन बन रहा है ना, ब्लू कलर का ट्रेकिया है यहाँ पे, और ये ब्राउनिश सी जो है वो लोब है इसकी थायराइड ग्लैंड की, राइट और लेफ्ट लोब है। और ये जो इसके दरमियान में कनेक्शन आ रहा है ना, इसको जो है वो इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। टी जो है वो इसमें साइलेंट है। अब इसका क्या फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का? ये सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन को एंड ट्राईहाइड्रोथायरॉक्सिन को, और इसके अलावा ये कैल्सिटोनिन की भी सिक्रीशन करता है। ट्राईहाइड्रोथायरोनिन जो है उसमें 3 आयोडीन के एटम होते हैं और थायरॉक्सिन में जो है वो 4 आयोडीन के एटम होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज दीज 2 हार्मोन। TSH जो है वो इन दोनों को रिलीज करता है। ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ थायरॉक्सिन दीज हार्मोन रिलीजेज। जब थायरॉक्सिन को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मिलता है, उसकी अमाउंट कम होती है, तो फिर ये वाले हार्मोन रिलीज होते हैं। दे प्रमोट द मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट वही जो है वो डाइजेशन, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर जो है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वो सारे जो वो मेटाबॉलिक रेट आ जाता है उसका, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। नेक्स्ट इज इन्हांस द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलर में जब कन्वर्ट होते हैं, ब्रेकडाउन होती है लार्जर की कम्प्लेक्स की इनटू स्मॉलर, उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन लिवर, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है उसकी डेवलपमेंट करता है फीटस और इन्फेंट्स में, जो बिल्कुल स्मॉल जो बेबीज़ होते हैं ना उनमें।
और मसल्स और स्केलेटन को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड प्रमोट द मोटिलिटी इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारी जो है वो डाइजेशन वाली ट्रैक्ट है, जिस जहाँ पर डाइजेशन होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और फिर तो उसमें जो है ये मोटिलिटी करता है, उस मोटिलिटी को प्रमोट कर रहा होता है। मोटिलिटी क्या है? मूवमेंट है, फूड मटेरियल मूव कर रहा होता है ना वो अप टू डाउन, तो ये सारा जो है वो इसमें हेल्प करता है। ओके अब ये पिक्चर आ जाती है, यहाँ पे देखें हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म आ जाता है। इनके जो डिफरेंट सिस्टम बताए हुए हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म में जो सिक्रीशन है वो कम होगी और हाइपरथायरॉयडिज्म में सिक्रीशन ज़्यादा होगी। ठीक है, अब सबसे पहले ये इसको देख लेते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, यहाँ पे सिक्रीशन कम है तो हेयर जो है वो क्या होंगे? थिन होंगे, डिप्रेशन होगा। ये जो है शिज़ोफ्रेनिया, ये भी है क्या आ जाता है? डिप्रेशन ही आ जाता है। ठीक है, टंग बिग हो जाएगी, क्रोकी वॉइस हो जाएगी। क्रोकी वॉइस जो है वो इस तरह की, मतलब क्या कह सकते हैं आप, जिस तरह मतलब जो बैड साउंड नहीं होती, जिसमें जो है वो बदमिजाज आवाज़ होती है, जिसको सुनना पसंद नहीं करते लोग, उस टाइप की जो है वो आवाज़ होती है। स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, स्किन कोल्ड होती है और कोल्ड इंटॉलरेंस होती है, मीन्स कि सर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। अब नेक्स्ट ये, अच्छा ये इसके कुछ सिम्टम्स है अच्छा हाइपोथायरॉयडिज्म के, इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इसके जब सिक्रीशन कम होती है तो। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? स्वेटिंग होती है, न्यूरोटिक एंजाइटी होती है, टेंशन होती है बहुत ज़्यादा, फाइन ट्रिमर होता है। फाइन ट्रिमर में क्या होता है कि शिवरिंग हो रही होती है आपको बहुत ज़्यादा। ये पेपर टेस्ट भी नीचे लिखा हुआ है, मतलब आपका पेपर टेस्ट होता है, आप जो है वो लिख के चेक, आपको जो है वो लिख के चेक करवाया जाता है कि आप ये चीज़ लिख के दें यहाँ पे कि पता चले आपको फाइन ट्रिमर है कि नहीं। वो इसलिए लिखवाते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो लिख भी नहीं सकते ना, उनको इतनी ज़्यादा शिवरिंग हो रही होती है, उनको लिखते हुए भी उनके हाथ इतने ज़्यादा कांप रहे होते हैं। ठीक है, ये है फाइन ट्रिमर। उसके बाद जो है वो आ जाता है ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस, के मतलब आपका रिफ्लेक्स एक्शन कितना काम करे, फास्ट है कि नहीं, आप कितने एक्टिव हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो आपको समटाइम जो है वो आपको ये ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस जो है वो चेक करना हो ना, तो हैमर जो है वो आपके हाथ पे मार के भी चेक कर सकते हैं कि इसको जो है वो पेन हो रहा है, इसको कितने जल्दी पेन फील हो रहा है, ये कितने जल्दी जो है मैसेज ब्रेन तक जा रहा है और फिर कितने जल्दी जो है ये एक्शन कर रहा है। ठीक है, वो फिंगर प्रिक वाली एग्जांपल भी ले सकते हैं कि फिंगर जो है वो आपकी नीडल से प्रिक की जाए तो आपका कितने जल्दी जो है वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा, मैसेज फिर कितने जल्दी मैसेज ब्रेन से वापस आएगा कि आप अपनी फिंगर वहाँ से उठाएंगे। ओके, फिर इसके अलावा डायरिया हो जाता है, वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज्ड एपेटाइट, आपको भूख बहुत लग रही है, आप खा रहे प्रॉपरली हैं लेकिन फिर भी आपका वेट जो है वो कम होता रहता है। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? बेन जो आपकी ये आ जाती हैं, क्या कहते हैं इसको, बोन्स, सॉरी जो है बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, फ्रेजाइल होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और एट्रियल फिब्रिलेशन जो है, यहाँ पे हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल नहीं होती, हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होती तो उसके इसमें समटाइम हार्ट फेलियर भी हो सकता है। दिस इज ओके। नेक्स्ट वन इज हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो उसके अलावा से सिम्टम्स आ गए हैं। क्या होता है कि इसमें ओवर सिक्रीशन हो रही होती है। ठीक है, ओवर सिक्रीशन होती है हार्मोन की, और ये क्या चीज़ काज करता है? इट काज ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ जो है उसमें क्या होता है, यहाँ पे पिक्चर भी ऐड की हुई है, ये देखें। अब इस डिजीज़ में क्या होता है कि ये इसकी आइज़ जो है वो बिल्कुल बाहर जो है वो आई हुई हैं, और यहाँ पे देखें इसकी ये नॉर्मल है। ठीक है, इसकी भी साइड, ये साइड वाले जो हैं ना टिश्यूज़, देखें आइज़ की जो साइड वाले टिश्यूज़ हैं वो स्वेल हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो ये जो है वो आ जाती है ग्रेव्स डिजीज़। अब यहाँ इसका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहे होते हैं बॉडी में, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म वाले रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहे होते हैं, हार्ट बीट इरेगुलर हो रही होती है, नॉर्मल नहीं होती, नर्वसनेस होती है, टेंशन एंजाइटी होती है, वेंटिलेशन रेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वेंटिलेशन रेट क्या है कि 1 मिनट के अंदर आप कितने टाइम जो है वो ब्रीथ कर रहे हैं, तो ठीक है वो सारा कुछ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, टेकिंग नॉर्मल फूड आप नॉर्मल ले रहे हैं लेकिन आपका जो वेट है वो लूज होता जा रहा है। ओके, एक्सेप्थेलमिया काज्ड बाय ग्रेव्स डिजीज़। चेंज इन मेंस्ट्रुअल पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, बाउल पैटर्न चेंज हो जाता है, बाउल में जो है वो जो फूड जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है बॉडी में जो डाइजेशन के थ्रू जो एक्स्ट्रा मटेरियल रह जाता है वो एनएस के थ्रू पास आउट हो जाता है। ठीक है, उसका पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। मोस्टली इस तरह से होता है कि मोशन जो है वो रहते हैं बंदे को, और इसके अलावा जो है वो फिटीग होता है, पेन होता है, टेम्परेचर होता है साथ, और सोने में जो है वो प्रॉब्लम होता है। ओके, हाइपरथायरॉयडिज्म रिजल्ट इन ग्रेव्स डिजीज़।
देयर इज़ इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड एंड एडिमा बिहाइंड द आइज़, आइज़ की साइन पे जो वो है ना वो थोड़े से लार्ज हो जाते हैं एंड द आइज़ प्रोट्रूड जो है वो चेंज हो जाता है। दिस इज़ एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। ये एक ग्वाइटर तो नेक में होता है ना, तो एक ये भी जो है ये ग्वाइटर है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस